علیہ وآلہ وسلم 7 آسمانوں سے گزر چکے تھے۔ ہر آسمان پر ایک نئی دنیا تھی، ایک نیا منظر تھا، ایک نئی مخلوق تھی، لیکن یہ سب ابھی آغاز تھا، کیونکہ اصل راز ان تمام آسمانوں کے بعد شروع ہونے والا تھا۔ ایک ایسا مقام جس کا ذکر قرآن صرف چند الفاظ میں کرتا ہے، لیکن وہ چند الفاظ صدیوں سے انسان کو حیرت میں ڈالے ہوئے ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام، جنہیں طاقت، علم اور عظمت کا سب سے بڑا فرشتہ کہا جاتا ہے، اچانک رک گئے۔ یہ وہی جبرائیل تھے جو وحی لے کر زمین پر آتے رہے، جنہوں نے انبیاء سے ملاقاتیں کی، جنہوں نے قوموں کے عروج اور زوال دیکھے، لیکن اس مقام پر پہنچ کر انہوں نے آگے بڑھنے سے انکار کر دیا۔ یہاں ایک انتہائی اہم سوال پیدا ہوتا ہے، اگر جبرائیل جیسی عظیم مخلوق بھی اس حد سے آگے نہیں جا سکتی تو آخر وہاں ایسا کیا موجود تھا؟ قرآن اس مقام کو سدرۃ المنتہا کہتا ہے۔ عربی زبان میں منتہا کا مطلب صرف آخری جگہ نہیں، بلکہ ایسی حد بھی ہے جس کے بعد کوئی چیز آگے نہیں بڑھ سکتی۔ یعنی یہ صرف ایک مقام نہیں بلکہ ایک سرحد بھی ہو سکتی ہے، ایک ایسی حد جہاں مخلوق کا علم ختم ہو جاتا ہے۔ انسان کی پوری تاریخ دراصل حدود کو توڑنے کی تاریخ ہے۔ کبھی سمندر آخری حد سمجھے جاتے تھے، پھر انسان نے انہیں عبور کر لیا۔ کبھی فضا آخری حد سمجھی جاتی تھی، پھر انسان نے آسمانوں میں پرواز کی۔ کبھی چاند ناقابل رسائی تھا، پھر انسان وہاں پہنچ گیا۔ لیکن ہر نئی دریافت کے بعد ایک نئی دیوار سامنے آ جاتی ہے۔ آج ہم اربوں نوری سال دور کہکشاؤں کو دیکھ سکتے ہیں، لیکن ایک سادہ سا سوال اب بھی موجود ہے، کائنات کے بعد کیا ہے؟ دلچسپ بات یہ ہے کہ جدید فلکیات کے پاس اس سوال کا کوئی حتمی جواب موجود نہیں۔ ہم صرف اسی حصے کو دیکھ سکتے ہیں جس کی روشنی ہم تک پہنچتی ہے۔ اس سے آگے کیا موجود ہے، اس کے بارے میں ہمارے تمام نظریات اندازوں پر مبنی ہیں۔ لیکن سدرۃ المنتہا کا تصور اس سے بھی زیادہ حیران کن ہے، کیونکہ یہاں بات صرف فاصلے کی نہیں بلکہ ادراک کی حد کی ہو رہی ہے۔ یہ وہ مقام ہو سکتا ہے جہاں نہ صرف مخلوق رک جاتی ہے بلکہ مخلوق کا سمجھنا بھی رک جاتا ہے۔ قرآن ایک اور عجیب جملہ استعمال کرتا ہے، جب سدرۃ المنتہا کو وہ چیزیں ڈھانپ رہی تھیں جو اسے ڈھانپ رہی تھیں۔ یہاں قرآن ان چیزوں کا نام نہیں لیتا، نہ ان کی شکل بیان کرتا ہے، نہ ان کا رنگ، نہ ان کی تعداد۔ گویا انسانی زبان ان مناظر کو بیان کرنے سے قاصر ہے۔ تصور کریں کہ اگر کسی انسان کو ایسے رنگ دکھائے جائیں جو انسانی آنکھ کبھی دیکھ ہی نہیں سکتی، تو وہ واپس آ کر ان کا بیان کیسے کرے گا؟ سائنس ہمیں بتاتی ہے کہ ہماری آنکھ صرف روشنی کے ایک انتہائی چھوٹے حصے کو دیکھ سکتی ہے۔ الٹرا وائلٹ، انفراریڈ، ایکس ریز، گیما ریز اور بے شمار لہریں ہماری آنکھوں سے پوشیدہ ہیں۔ بعض جانور وہ چیزیں دیکھ سکتے ہیں جو انسان نہیں دیکھ سکتا۔ اگر ہماری دنیا میں ہی ایسی چیزیں موجود ہیں جنہیں ہم دیکھنے سے قاصر ہیں، تو پھر وہ حقیقتیں کیسی ہوں گی جو ہماری پوری کائنات سے باہر یا اس کی آخری حد پر موجود ہوں؟ یہی وجہ ہے کہ سدرۃ المنتہا کو صرف ایک درخت سمجھ لینا شاید اس کی عظمت کو محدود کر دینا ہے۔ بہت سے علماء اسے ایک حقیقی آسمانی درخت قرار دیتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اس کی حقیقت دنیا کے کسی درخت جیسی نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے پتوں اور پھلوں کی عظمت بیان فرمائی، لیکن ان مثالوں کا مقصد شاید صرف انسان کو ایک اندازہ دینا تھا، کیونکہ دنیا کی زبان میں آسمانی حقیقتوں کو مکمل طور پر بیان کرنا ممکن نہیں۔ اب ایک اور حیران کن بات پر غور کیجئے، جبریل علیہ السلام کا رک جانا دراصل مخلوق کی محدودیت کا اعلان ہے۔ انسان ہمیشہ یہ سمجھتا رہا کہ علم کی کوئی حد نہیں، لیکن سدرۃ المنتہا ہمیں بتاتی ہے کہ ایک مقام ایسا بھی ہے جہاں سب سے زیادہ جاننے والی مخلوق بھی خاموش ہو جاتی ہے۔ کائنات کی ہر دریافت ہمیں یہ احساس دلاتی ہے کہ ہم حقیقت میں کتنا کم جانتے ہیں۔ لیکن اگر پوری کائنات ایک کتاب ہے تو شاید سدرۃ المنتہا اس کتاب کا آخری صفحہ نہیں بلکہ وہ مقام ہے جہاں کتاب ختم ہو جاتی ہے اور حقیقت شروع ہوتی ہے۔ وہاں شاید فاصلے کا کوئی مطلب نہیں رہتا، وہاں شاید وقت اپنی اہمیت کھو دیتا ہے، وہاں شاید روشنی بھی اپنی موجودہ شکل میں موجود نہیں ہوتی۔ اور یہی وہ مقام ہے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ عظیم نشانیاں دکھائی گئیں جنہیں قرآن آیات کبریٰ کہتا ہے۔ کون سی نشانیاں، کیسی نشانیاں؟ قرآن خاموش ہے، لیکن شاید یہی خاموشی اس مقام کے سب سے بڑے راز کی حفاظت کر رہی ہے۔ اسی مقام کے قریب ایک اور ایسی حقیقت موجود تھی جس کا ذکر قرآن صرف ایک مختصر جملے میں کرتا ہے۔ اس کے قریب جنت المأوا ہے۔ یہ جنت کہاں ہے؟ کیا یہ ہماری کائنات کے اندر ہے؟ کیا یہ 7 آسمانوں سے اوپر ہے؟ یا یہ کسی ایسی حقیقت کا حصہ ہے جسے ہماری موجودہ سائنس کبھی نہیں سمجھ سکے گی؟ جنت المأوا کا ذکر قرآن صرف چند الفاظ میں کرتا ہے، لیکن انہی چند الفاظ کے پیچھے ایک ایسی حقیقت پوشیدہ ہے
जिसे इंसान आज तक मुकम्मल तौर पर नहीं समझ सका। दिलचस्प बात यह है कि कुरान जन्नत को न किसी सितारे के साथ जोड़ता है, न किसी कहकशां के साथ, और न ही किसी मालूम फल्की मकाम के साथ। गोया ये वो हकीकत है जो हमारी कायनात के कवानीन से मुख्तलिफ है। शायद इसीलिए जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस मकाम के करीब पहुंचे तो वहां की चीजें इंसानी अल्फाज से बाहर हो गईं। हमारी पूरी जिंदगी 3 चीजों के अंदर गुजरती है, वक्त, फासिला और मादा। हम हर चीज को इन्हीं पैमानों से नापते हैं। अगर कोई चीज हमसे 1 किलोमीटर दूर है तो हम उसका फासिला जानते हैं। अगर कोई वाकया 1 घंटे में होता है तो हम उसका वक्त जानते हैं। अगर कोई चीज मौजूद है यानी वजूद रखती है तो उसका मादा मौजूद होता है। लेकिन अगर कोई ऐसी हकीकत हो जहां ये तीनों चीजें अपनी अहमियत खो दें तो इंसान उसे कैसे समझेगा। इसलिए मेराज का वाकया महज एक सफर नहीं बल्कि इंसानी इदराक की हुदूद का सबसे बड़ा इम्तिहान है, क्योंकि यहां एक ऐसा मकाम आता है जहां फासिले के हिसाब काम नहीं करते। जमीन से करीबी सितारा भी 4 नूरी साल दूर है। हमारी कहकशां 1 लाख नूरी साल चौड़ी है, जबकि करीब तरीन बड़ी कहकशां लाखों नूरी साल दूर वाक़ है। यानी अगर रोशनी की रफ्तार से भी सफर किया जाए तो लाखों साल लग सकते हैं। लेकिन मेराज की रात में ये तमाम फासिले गैर अहम हो जाते हैं। शायद यही वजह है कि कुरान मेराज को फलकियाती सफर के तौर पर बयान नहीं करता, बल्कि इसे आयात यानी निशानियां कहता है। निशानियां ऐसी हकीकतों की जिन्हें देखने के बाद इंसान की सोच हमेशा के लिए बदल जाए। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उन्होंने अपने रब की बड़ी बड़ी निशानियां देखी। कुरान भी यही कहता है, लक़द रअा मिन आयाति रब्बिहिल कुबरा, यानी बेशक उसने अपने रब की बहुत बड़ी निशानियां देखी। यहां एक इंतहाई अहम नुक्ता मौजूद है। कुरान इन निशानियों की फहरिस्त बयान नहीं करता। अगर मकसद सिर्फ मालूमात देना होता तो इन तमाम चीजों की तफसील बयान की जा सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। शायद इसकी वजह यह है कि बाज़ चीजें सिर्फ देखी जा सकती हैं, बयान नहीं की जा सकती। अगर आज एक इंसान को 300 साल पहले के जमाने में भेज दिया जाए और वो वापस आकर इंटरनेट, सैटेलाइट, मसनूई जहानत या जेम्स वेब टेलीस्कोप के बारे में बताए तो शायद लोग उसे समझ ही ना सकें, क्योंकि उनके अल्फाज और तजरिबात महदूद होंगे। इसी तरह मुमकिन है कि मेराज में देखे जाने वाली हकीकतें इंसानी अल्फाज से कहीं ज्यादा बड़ी हों। इंसानी दिमाग खुद भी एक महदूद निजाम है। साइंसदानों के मुताबिक हमारा दिमाग हकीकत को मुकम्मल तौर पर नहीं देखता, बल्कि सिर्फ इतनी मालूमात दिखाता है जो जिंदा रहने के लिए जरूरी हो। हमारी आंखें पूरा बरकी मकनातीसी स्पेक्ट्रम नहीं देखती, हमारे कान तमाम आवाजें नहीं सुन सकते, हमारी सूंघने और महसूस करने की सलाहियत भी महदूद है। इसका मतलब यह है कि हम जिस दुनिया को हकीकत समझते हैं वो हकीकत का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है। अगर हमारी दुनिया में ही इतनी चीजें हमारे हवास से पोशीदा हैं तो फिर वो आलम कैसा होगा जहां फरिश्ते मौजूद हों, जहां जन्नत हो, जहां अर्श हो और जहां सिदरतुल मुंतहा जैसी हकीकत मौजूद हो। कुरान एक और अजीब बात बयान करता है। जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो अजीम निशानियां देखी तो कुरान कहता है कि निगाह ना बहकी और ना हद से बढ़ी। ये आयत इंतहाई हैरान कुन है, क्योंकि आम इंसान किसी गैर मामूली मंजर को देखकर खौफजदा हो जाता है, उसकी सोच बिखर जाती है। लेकिन यहां रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसी हकीकतें दिखाई जा रही थीं जिन्हें किसी इंसान ने पहले कभी नहीं देखा था, और इसके बावजूद उनकी निगाह न भटकी और न ही इसमें इज़्तिराब पैदा हुआ। ये इस बात की तरफ इशारा करता है कि वहां के मनाजिर आम इंसानी अदराक से कहीं ज्यादा अजीम थे। अब एक और सवाल पैदा होता है, अगर सिदरतुल मुंतहा मखलूक की आखिरी हद है तो वहां फरिश्ते क्यों मौजूद हैं? अहादीस में बैतुल मामूर का जिक्र मिलता है। ये एक ऐसा मकाम है जहां हर रोज 70,000 फरिश्ते दाखिल होते हैं और फिर दोबारा उनकी बारी नहीं आती। अगर रोजाना 70,000 नए फरिश्ते आते हैं और यह सिलसिला अजल से जारी है तो इससे अंदाजा होता है कि अल्लाह की मखलूक कितनी वसी है। हमारी पूरी जमीन पर 8 अरब इंसान हैं, लेकिन सिर्फ एक आसमानी मकाम पर आने वाले फरिश्तों की तादाद रोजाना 70,000 है। इससे मालूम होता है कि हमारी दुनिया पूरी तख्लीक का सिर्फ एक निहायत छोटा सा हिस्सा है। शायद इसीलिए कुरान बार बार आसमानों और जमीन के जिक्र के साथ इंसान को अपनी हैसियत याद दिलाता है। हम अपने आप को कायनात का मरकज समझते हैं, लेकिन हकीकत में हम एक आम से सितारे के गिर्द गर्दिश करने वाले एक छोटे से सैयारे पर मौजूद हैं, और यह सैयारा भी एक आम कहकशां के एक बाजू में वाक़ है। अगर हमारी पूरी जमीन इतनी मामूली है तो फिर वो मकाम कितना अजीम होगा जहां जिब्रील अलैहिस्सलाम भी आगे नहीं जा सके। कुछ उलमा कहते हैं कि सिदरतुल मुंतहा दरअसल तमाम आसमानी उलूम की आखिरी हद है। कुछ कहते हैं कि यह फरिश्तों की रसाई की आखिरी हद है।
कुछ इसे जन्नत और आलम गैब के दरमियान मौजूद एक अजीम मकाम करार देते हैं। लेकिन शायद इसकी सबसे हैरान कुन बात यह है कि कुरान ने इसके बारे में बहुत कम अल्फाज इस्तेमाल किए हैं। जितना कम बयान किया गया है, इतना ही ज्यादा राज पैदा हो गया है। शायद अगर तमाम तफसीलात बयान कर दी जाती तो इंसान इसे सिर्फ एक और मालूमाती मौजू समझ लेता, लेकिन जब कुछ चीजें पोशीदा रहती हैं तो वो सदियों तक इंसान के जहन में जिंदा रहती हैं। और यही वजह है कि 1400 साल बाद भी सिदरतुल मुंतहा का नाम सुनकर इंसान के जहन में एक सवाल पैदा होता है, आखिर वहां था क्या? क्या वो नूर था? क्या वो ऐसी मखलूकात थी जिन्हें इंसान ने कभी नहीं देखा था? क्या वो ऐसी हकीकतें थीं जो फासले, वक्त और मादे से आजाद थीं? या फिर वो मकाम दरअसल इस बात का ऐलान था कि कायनात की सबसे बड़ी हकीकतें आलात से नहीं बल्कि इजाजत से देखी जाती हैं? क्योंकि इंसान जितना भी आगे चला जाए, जितनी भी ताकतवर दूरबीनें बना ले, जितने भी खलाई जहाज तैयार कर ले, कुछ दरवाजे ऐसे हैं जो सिर्फ इल्म से नहीं बल्कि इजाजत से खुलते हैं, और शायद सिदरतुल मुंतहा इन्हीं दरवाजों में से एक है। लेकिन इस मकाम का सबसे हैरान कुन पहलू अभी बाकी है, क्योंकि कुरान एक और ऐसी हकीकत की तरफ इशारा करता है जिसने सदियों से मुफस्सिरीन और अहले इल्म को हैरत में डाल रखा है। वो ये कि सिदरतुल मुंतहा को ऐसी चीजें ढांप रही थीं जिनका नाम तक बयान नहीं किया गया, और शायद इन्हीं पोशीदा चीजों में इस मकाम का सबसे बड़ा राज छुपा हुआ है। मेराज के पूरे वाक़े में कुरान ने सिर्फ 3 चीजों पर खास जोर दिया है। पहली जिब्रील अलैहिस्सलाम, दूसरी सिदरतुल मुंतहा, और तीसरी वो अजीम निशानियां जिन्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा। लेकिन इन निशानियों की तफसील बयान नहीं की गई। गोया कुरान इंसान को मुकम्मल तस्वीर नहीं देता, बल्कि सिर्फ इतना दरवाजा खोलता है कि इंसान सोचने पर मजबूर हो जाए। अगर हम पूरी कायनात की तारीख देखें तो इंसान हमेशा उन चीजों से डरता भी रहा है और मुतासिर भी होता रहा है जिन्हें वो समझ नहीं सकता। कदीम जमाने में लोग सितारों को देवता समझते थे, फिर मालूम हुआ कि वो सूरज जैसे सितारे हैं। बाद में कहकशाएं दरियाफ्त हुई, फिर मालूम हुआ कि हमारी कहकशां भी अरबों कहकशाओं में से एक है। हर दरियाफ्त ने इंसान को यह एहसास दिलाया कि हकीकत उसकी सोच से कहीं ज्यादा बड़ी है। लेकिन सिदरतुल मुंतहा का मामला मुख्तलिफ है। यहां इंसान इसलिए नहीं रुकता कि इसके पास ताकत नहीं, बल्कि इसलिए रुकता है कि इसके पास इजाजत नहीं। यह फर्क बहुत अहम है। आज अगर हमें ज्यादा ताकतवर इंजन मिल जाएं तो हम मरीख तक जा सकते हैं। अगर मजीद तरक्की हो जाए तो शायद दूसरे सितारों तक भी पहुंच जाएं। लेकिन कुछ हुदूद ऐसी होती हैं जिन्हें रफ्तार, टेक्नोलॉजी या इल्म उबूर नहीं कर सकता। इसीलिए जिब्रील अलैहिस्सलाम का रुक जाना दरअसल पूरी मखलूक के रुक जाने की अलामत है। हमारी दुनिया में हर चीज महदूद है। रोशनी महदूद है, फासिला महदूद है, जिंदगी महदूद है, वक्त महदूद है, हत्ता कि सितारे भी महदूद उम्र रखते हैं। सूरज एक दिन खत्म हो जाएगा, कहकशाएं एक दिन तब्दील हो जाएंगी, पूरी कायनात एक दिन अपनी मौजूदा शक्ल खो देगी। लेकिन कुरान जब आलम गैब की बात करता है तो वहां यह महदूदियत खत्म होने लगती है। अगर हम इंसानी दिमाग की बात करें तो साइंसदान कहते हैं कि हमारा दिमाग हकीकत को सादा बनाकर दिखाता है। अगर इंसान को एक ही वक्त में पूरी कायनात की तमाम मालूमात दिखा दी जाएं तो शायद वो इन्हें बर्दाश्त ही ना कर सके। इसलिए हमारा जहन मालूमात को महदूद मिकदार में वसूल करता है। शायद यही वजह है कि मेराज के वाक़े में भी सिर्फ इतनी चीजें बयान की गईं जितनी इंसान समझ सकता था। अब एक और सवाल पैदा होता है, अगर सिदरतुल मुंतहा इल्म की आखिरी हद है तो फिर क़यामत के बाद क्या यह मकाम मौजूद रहेगा? कुरान क़यामत के मनाजिर बयान करते हुए कहता है कि सितारे टूट जाएंगे, आसमान फट जाएंगे, सूरज लपेट दिया जाएगा और जमीन बदल दी जाएगी। लेकिन बाज़ उलमा के मुताबिक आलम गैब के बाज़ मकामात इन मादी कवानीन से आज़ाद हैं जिनके तहत हमारी कायनात चल रही है। इसका मतलब यह हो सकता है कि सिदरतुल मुंतहा का ताल्लुक सिर्फ इस दुनिया से नहीं बल्कि उस हकीकत से है जो कायनात के खत्म होने के बाद भी बाकी रहेगी। लेकिन इस पूरी कहानी में एक और हैरान कुन पहलू भी मौजूद है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस जमीन पर आ गए। वो दोबारा उसी दुनिया में आ गए जहां दिन और रात थे, जहां मिट्टी थी, जहां पहाड़ थे, जहां लोग थे। लेकिन अब उनके पास एक ऐसा मुशाहिदा था जो किसी और इंसान के पास नहीं था। सोचिए, एक इंसान जिसने मखलूक की आखिरी हद देखी हो, वो दोबारा जमीन की जिंदगी को किस नजर से देखता होगा? शायद इसीलिए मेराज के बाद दुनिया की मुश्किलात, मुखालफतें और तकलीफें पहले जैसी नहीं रहीं, क्योंकि जब इंसान हकीकत के उस मकाम को देख लेता है जहां फरिश्ते भी रुक जाते हैं तो फिर दुनिया की तमाम चीजें बहुत छोटी महसूस होने लगती हैं। लेकिन अगर सिदरतुल मुंतहा को जदीद साइंस की जबान में समझने की कोशिश की जाए तो एक इंतहाई हैरान कुन तसव्वुर सामने आता है। आज के साइंसदान इसे कॉस्मिक होराइजन कहते हैं।
यानी कायनात की वो हद जिसके बाद मौजूद मालूमात कभी हम तक नहीं पहुंच सकती। हम अक्सर ये समझते हैं कि अगर हमारे पास ज्यादा ताकतवर दूरबीन आ जाए तो हम पूरी कायनात को देख लेंगे, लेकिन हकीकत इसके बरअक्स है। कायनात की उम्र तकरीबन 13 अरब साल है और रोशनी की रफ्तार महदूद है। इसका मतलब यह है कि एक खास फासले के बाद मौजूद बहुत सी चीजों की रोशनी अभी तक हम तक पहुंची ही नहीं। गोया कायनात में एक ऐसी दीवार मौजूद है जिसके बाद मौजूद हकीकत हमारे लिए हमेशा पोशीदा रहेगी। साइंस इसे ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स कहती है, यानी हम सिर्फ इतनी कायनात देख सकते हैं जितनी मालूमात हम तक पहुंच चुकी हैं। इसके बाद क्या मौजूद है कोई नहीं जानता। शायद वहां मजीद कहकशाएं हों, शायद दूसरी कायनातें हों, शायद खला लामहदूद हो, और शायद वहां ऐसी हकीकतें मौजूद हों जिन्हें इंसानी जहन कभी समझ ही ना सके। यहां सिदरतुल मुंतहा का तसव्वुर एक इंतहाई गहराई इख्तियार कर लेता है, क्योंकि पहली बार साइंस भी यह तस्लीम करती नजर आती है कि हकीकत का एक हिस्सा ऐसा है जिस तक मालूमात पहुंच ही नहीं सकती। आज अगर एक सुपर कंप्यूटर पूरी जमीन के तमाम डेटा को जमा कर ले, तब भी वो इन मालूमात को हासिल नहीं कर सकता जो कायनाती उफक के पार मौजूद है। गोया सिर्फ रफ्तार ही महदूद नहीं, सिर्फ रोशनी ही महदूद नहीं, बल्कि मालूमात भी महदूद हैं। और शायद यही वजह है कि बाज जदीद फिजिसिस्ट ये कहते हैं कि कायनात बुनियादी तौर पर मादा नहीं बल्कि मालूमात से बनी है, यानी कि इंफॉर्मेशन। और अगर ये मालूमात मौजूद ना हो तो हकीकत हमारे लिए वजूद ही नहीं रखती। मिसाल के तौर पर एक सितारा अरबों नूरी साल दूर मौजूद हो सकता है, लेकिन अगर उसकी रोशनी हम तक नहीं पहुंची तो हमारे लिए उसका वजूद अमलन पोशीदा है। यहां एक और हैरानकुन सवाल पैदा होता है, अगर मालूमात खुद महदूद हैं तो क्या कोई ऐसी हकीकत भी हो सकती है जो हमेशा हमारी मालूमात से बाहर रहे? शायद यही वो मकाम है जहां साइंस और गैब पहली बार एक दूसरे के करीब आते हुए महसूस होते हैं, क्योंकि दोनों ये तस्लीम करते हैं कि हकीकत का एक हिस्सा ऐसा भी हो सकता है जो हमेशा हमारी पहुंच से बाहर रहे। अब जरा वक्त के बारे में सोचिए। हमारी पूरी जिंदगी वक्त के अंदर गुजरती है। हम पैदा होते हैं, बड़े होते हैं, बूढ़े होते हैं और फिर दुनिया से चले जाते हैं। लेकिन आइंस्टाइन ने बताया कि वक्त कोई मुस्तकिल चीज नहीं। वक्त सुस्त भी हो सकता है, वक्त तेज भी हो सकता है। ब्लैक होल के करीब वक्त मुख्तलिफ रफ्तार से गुजरता है। रोशनी की रफ्तार के करीब वक्त तकरीबन रुकने लगता है। अगर कायनात के अंदर ही वक्त अपनी रफ्तार बदल सकता है तो फिर ऐसी हकीकतों में वक्त कैसा होगा जो कायनात के कवानीन से बाहर हों? यह सवाल आज भी फिजिक्स के सबसे बड़े सवालात में शामिल है। कुछ साइंसदानों का ख्याल है कि वक्त खुद एक बुनियादी हकीकत नहीं बल्कि कायनात की एक खास हालत है, यानी मुमकिन है कि ऐसी हकीकतें मौजूद हों जहां वक्त सिरे से मौजूद ही ना हो। अगर ऐसा है तो फिर मेराज के मुख्तसर वक्त में इतने अजीम मुशाहिदात होना मजीद हैरानकुन हो जाता है, क्योंकि वहां वक्त हमारी दुनिया की तरह नहीं चल रहा था। शायद यही वजह है कि दुनिया के चंद घंटों में एक ऐसा सफर मुकम्मल हुआ जिसे हमारी फिजिक्स के कवानीन से समझना मुश्किल है। अब एक और जदीद तस्वुर सामने आता है, डायमेंशंस। हम 3 जहतों में रहते हैं, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, और आइंस्टाइन ने वक्त को चौथी जहत करार दिया है। लेकिन बाज जदीद नजरियात जैसे स्ट्रिंग थ्योरी ये तजवीज करते हैं कि कायनात में 10 या 11 जहतें भी हो सकती हैं। अगर ये दुरुस्त हो तो हमारी पूरी दुनिया हकीकत का एक छोटा सा हिस्सा होगी। हम सिर्फ उन जहतों को महसूस कर सकते हैं या करते हैं जिनके लिए हमारे हवास बनाए गए हैं। मुमकिन है कि दूसरी जहतें हमारे इर्द गिर्द मौजूद हों लेकिन हम उन्हें महसूस ही ना कर सकते हों। तसव्वुर करें कि एक 2 जहती दुनिया में यानी 2 डायमेंशन में रहने वाली मखलूक को अचानक तीसरी जहत दिखा दी जाए। उसके लिए वो हकीकत मोजज़े से कम नहीं होगी। शायद इसी तरह अगर हमारी दुनिया से बुलंद हकीकतें मौजूद हों तो हम उन्हें मौजूदा शऊर से समझ ही ना सकें। यहां सिदरतुल मुंतहा एक और माना इख्तियार करती है। शायद ये सिर्फ एक मकाम नहीं, शायद ये एक रियलिटी बाउंड्री हो, यानी एक ऐसी हद जहां हमारी जिहाद खत्म हो जाती हैं और एक मुख्तलिफ हकीकत शुरू हो जाती है। साइंस अभी तक इन सवालात के जवाब नहीं दे सकी। क्या कायनात के बाहर कुछ मौजूद है? क्या वक्त के बगैर वजूद मुमकिन है? क्या इजाफी जहतें हकीकत